So, good morning students. How are you all? I hope all you are fine. In the previous video, I explained you about laws of refraction and some details about the refractive index and the speed of the light. Also, in the previous video, I explained you about or I told you that refractive index, it can be written as the ratio of speed of two mediums, or we can write refractive index of a medium. It is the ratio of refractive index of a medium is the ratio of speed of light in first medium, speed of light in first medium, speed of light in first medium, and B here represents medium. So speed of light in second medium, speed of light in second medium. Or we can write V1 equals to V2. This is our refractive index. And the refractive index is always associated with the second medium. I hope this point is clear to you. Now, if I write that refractive index of glass is 1.5, that means refractive index of glass is 1.5. What does this mean? Here, first medium is not written. That means the first medium is either vacuum or air. So here, the refractive index of glass is 1.5. It means this refractive index is with respect to the glass. That the ratio of speed of light, in medium one is air. In air, to speed of light in glass is equals to 1.5. I hope it is clear to you that refractive index can be written as speed of the light, ratio of speed of light of two mediums. And if we write here as n glass equals to 1.5, here n represents refractive index. The refractive index of glass is 1.5. That means speed of light in medium 1. Here medium 1 is air. That speed of light in air to speed of light in glass equals to 1.5. And this refractive index, it depends upon the nature of the material or the medium and the wavelength of light used. So here refractive index, it depends on nature of medium. हम कौन सा medium में use कर रहे हैं? Nature of material of medium. And second one, wavelength of light use. This is represents wavelength of light. ठीक है, तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंड करता है सिर्फ दो चीजों में, कौन सा मटेरियल या कौन सा मीडियम हम यूज कर रहे हैं और जो लाइट हम यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ क्या है. ठीक है. नाउ based on this refractive index, the lenses are used for making optical instrument. ठीक है, जो जितने भी हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बेसिकली हम क्यों बना पाते हैं या हमें उन्हें बनाने के लिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की नॉलेज होनी चाहिए, वो भी एक्यूरेट नॉलेज. अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में एक्यूरेटली पता है तब जाके हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में लेंस का यूज कर सकते हैं. Also, if you remember, I explained in the first video about optically denser medium, and optically rarer medium. If a ray of light travels from optically denser medium to rarer medium, then refraction of light takes place. And similarly, if ray of light travels from rarer medium to denser medium or optically rarer medium to optically denser medium, then also the refraction of light takes place. But if the two mediums
मीडियम्स दे आर ऑप्टिकली एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, अभी तो हमारे पास क्या था, एक डेंसर था, एक रेयर मीडियम था। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि दोनों मीडियम जो है वो ऑप्टिकली सेम है, तो क्या हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस होगा? ये क्या हमारा रिफ्रैक्शन होगा लाइट का? नो, तब हमारा रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस कंडीशन में क्या है, दोनों के दोनों क्या है, हमारे दोनों मीडियम उनकी दो बोथ आर ऑप्टिकली सेम, तो कोई भी हमारा जो बेंडिंग होगा वो नहीं होगा। ठीक है, और अब ये ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर है, इट इज बेसिकली रिलेटेड विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ऑप्टिकली सेम होने का मतलब क्या है कि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, सेम होगा। ऑप्टिकली सेम मीन्स दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेम, कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होगा, सेम होगा। एंड एज I explained in the previous video that the refractive index of a medium, it is the light bending ability of the medium। कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेसिकली क्या होता है कि किसी भी मीडियम में जो लाइट को बेंड करने की कैपेबिलिटी या एबिलिटी कितनी होती है, दैट इज अवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अब अगर ऑप्टिकली सेम है, ठीक है, ना वो डेंसर है ना वो रेयर है, तो दैट मीन्स कि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम का क्या है, सेम है। तो यानी कि जब दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो उसमें क्या है, जो हमारी लाइट बेंड है वो लाइट मतलब, तो उस केस में हमारी कोई भी बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होगी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। अब ऑप्टिकली जो ये हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेस्ड ऑन ऑप्टिकल डेंसिटी, या इट डिपेंड्स ऑन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिपेंड ऑन ऑप्टिकली डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी। जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड करता है, और ऑप्टिकल डेंसिटी हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिपेंड करती है। ठीक है, तो जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो उतना ज्यादा डेंस होगा। ठीक है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स मोर डेंसर, ज्यादा डेंस होगा, लो मोर डेंसर। लो ऑप्टिकल लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स उसका जो क्या होगा, लेस डेंसर। ठीक है, तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि इफ देयर आर टू मीडियम्स, medium 1 and medium 2, if medium 1 is more denser than medium 2, it means it has a high refractive index with respect to medium 2। कि अगर ये more denser है medium 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है दूसरे हमारे मीडियम से। और अगर या हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा जो सेकंड मीडियम है, एंड सेकंड मीडियम का अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इट मींस इट इज लेस डेंसर और इट इज रेयरर देन मीडियम 1। एंड आल्सो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हुआ कि उसकी जो एबिलिटी है बीम को लाइट रेस को चेंज करने की वो ज्यादा होगी। ठीक है, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट मींस इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट मोर। ठीक है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर डेंसर एंड मींस can more bend the light, can more bend the light। I hope this is a little bit complicated, थोड़ा complicated है, पर देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी को पे डिपेंड करता है। ऑप्टिकल डेंसिटी मीन्स ऑप्टिकली रेयर या ऑप्टिकली डेंसर, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा डेंसर होगा और उतनी ज्यादा वो लाइट को बेंड करेगा। ठीक है, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, दिस इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडियम। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो न्यूमेरिकल्स जो हम सॉल्व करेंगे उसमें हमारे काम आएगी। ठीक है, तो सपोज व्हेन 1 to 2, जब हमारी लाइट
फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को? इट विल बी रिटन एज 1 and 2 or it can be written as V1 upon V2. I hope it is clear. Light travels from one medium to another medium. That is refractive index is equals to V1 upon V2. Speed of light in medium 1 to speed of light in medium 2. अब अगर इसी का रिवर्स हम कर दें कि सेकेंड मीडियम से हमारी फर्स्ट मीडियम में रेज ऑफ लाइट आ रही है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 2 and 1. दैट मीन्स V2 अपॉन V1. इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि when light travels from medium 2 to medium 1, that is V2 upon V1. ठीक है, कंबाइनिंग अगर हम इन दोनों को देखें तो हमें क्या मिलेगा? 1 and 2 equals to 2n. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, ऑन कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशंस we will get a relationship that 1 and 2 equals to 1 upon 2 and 1. That is the refractive index when light goes from one medium to another is equals to the reciprocal of the refractive index when light goes from second medium to one medium. I hope this formula or this relationship is clear to you. Since now we will solve some questions on the basis of the refractive index. और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एयर एंड ग्लास इक्वल्स टू 1 अपॉन ग्लास एंड एयर. ऑल्दो एयर तो हम लिखते नहीं है, ठीक है, तो हम सिंपल एंड ग्लास लिख सकते हैं 1 अपॉन ग्लास एंड. यहाँ पे तो हमें मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पे लिखते नहीं है, ठीक है. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए एंड जी एंड ई. जरूरी नहीं यहाँ पे एयर ग्लास हो, एयर टू वाटर भी हो सकता है, वाटर टू एयर भी हो सकता है, ग्लास टू वाटर या वाटर टू ग्लास भी हो सकता है. सो आई होप दीज ऑल फॉर्मूलाज आर क्लियर टू यू. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस. So here is a question based on refractive index. This is your NCERT question. ठीक है, light enter from air to glass. That means here first medium is air and second medium is glass. Having refractive index equals to 1.50. ठीक है, find speed of light in glass. हमें speed of light निकालनी है ग्लास में. As we know that the formula is refractive index is, first you will have to write two formula. Refractive index equals to, and refractive index of glass. Always the refractive index is, if the refractive index is given, then it is always the refractive index of second medium. Refractive index of glass equals to speed of light in first medium. What is first medium? Air. Speed of light in air, or we can say in vacuum, to speed of light in glass. So here refractive index of glass is given as 1.5. Speed of light, it is 3 into 10 to power 8 meter per second. If the speed of light is not given, then you have to write 3 into 10 to power 8. Here we will not write meter per second, and we have to find V2. V2 means speed of light in the glass. That will be comes out to be V2 equals to 1.5 into 1.5 is divided by 3 into 10 to power 8. And it comes out to be 2 into 10 to power 8 meter per second. I hope this is clear to you. Here we can also write V1 upon V2. I think this question is clear to you. Now let me again explain you this question. The question is given कि एक लाइट है जो एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में जा रही है. तो हमारा फर्स्ट मीडियम हो गया एयर, सेकंड मीडियम हो गया ग्लास, एंड
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन ऑफ 1.5. तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? हमेशा सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑफ ग्लास. हमें स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में निकालनी है. एज वी नो द फॉर्मूला कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होगा क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, एंड इट इज रिटन एज v1 अपॉन v2. v1 मीन्स लाइट की स्पीड मीडियम 1 में, v2 मीन्स लाइट की स्पीड मीडियम 2 में. Putting all these value 1.5 equals to 3 into 10 to power 8. What minute? Here it is a little bit complicated. So V2 is 3 into 10 to power 8 upon 1.5. It comes out to be 2 into 10 to power 7. This is 0.22 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, यहाँ पे से अगर हम डेसिमल हटाएंगे यहाँ पे 0 लग जाएगा, तो दैट मीन्स 2 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे हम वैल्यू डाली 1.5, 3 into 10 to power 8 V2, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी 3 into 10 to power 8, दैट इज डिवाइडेड बाय 1.5 एंड इट कम्स आउट टू बी 2 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड. I hope this question is clear to you. Now another second question of NCERT is, now here is another question. The question is, the refractive index of kerosene, turpentine and water are 1.44, 1.47, 1.33 respectively. In which of the material this material does light travel faster? हमें तीन मीडियम दिए गए, कैरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर. इनके अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं. ठीक है, कैरोसिन का 1.44, टर्पेंटाइन का 1.47 एंड वाटर का 1.33. तो हमें ये बताना है कि इसमें स्पीड ऑफ लाइट मतलब लाइट सबसे ज्यादा किसमें ट्रैवल करेगी. ठीक है, अब आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें फॉर्मूला क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर मीडियम. तो यहाँ पे तीन अलग अलग मीडियम है, तो हम जनरल फॉर्मूला लिखेंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू speed of light in air is speed of light in medium. Here you will write speed of light. आप इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं करेंगे. ठीक है, this implies हमें speed of light निकालनी. speed of light in medium equals to speed of light in air upon refractive index is refractive index. I hope till now the concept is clear to you. हमें तीन मीडियम दिए हुए हैं, गिवन है. हमें तीन मीडियम में से फाइंड आउट करना है कि किसमें जो लाइट है वो सबसे ज्यादा ट्रैवल करेगी, फास्टेस्ट ट्रैवल करेगी. फॉर्मूला लिखा हमने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू V1 अपॉन V2, दैट मीन्स स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 1, दैट इज एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. तो हमें स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है सेकंड मीडियम में. तो हमने रीअरेंज करा फॉर्मूला, तो हमें कुछ फॉर्मूला इस तरीके से मिला. इसके बेस पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, एज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज कांस्टेंट फॉर ऑल द थ्री मीडियम्स. तीनों जो हमारे पास मीडियम है उनके लिए हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कांस्टेंट होगी. ठीक है, सबके लिए उसकी वैल्यू सेम है, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस. तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स when one value is increases, then the corresponding to that value the second value is decreases. That means अगर हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो हमारी स्पीड ऑफ लाइट घटेगी, और स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो हमारा स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? बढ़ेगी. इसके बेस पे हम एक सिंपल सा कंक्लूजन लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट speed of light in medium is inversely proportional to refractive index.
तो इसका मतलब क्या हुआ, द मीडियम विच हैज द लीस्ट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट, कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसके वो क्या होगा, उस मीडियम में जो हमारी लाइट है वो सबसे तेज ट्रेवल करेगी। तो वी कैन कंक्लूड दैट स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन द मीडियम। हम इससे क्या कंक्लूड करेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम इन दैट मीडियम whose refractive index is minimum, whose refractive index is minimum, जिसका सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा ट्रेवल करेगी। ठीक है, hence so we can say that the light travels fastest in, this implies light travels fastest in water, because it has the least value of refractive index. Light travels fastest in water because its refractive index is minimum. Its refractive index is minimum. Now that is 1.33. I hope this question is also clear to you. ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें 3 मटेरियल्स दिए थे, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था, तो हमें ये फाइंड आउट करना था कि किस मीडियम में हमारी लाइट सबसे ज़्यादा ट्रेवल करेगी। हमारे पास जो फॉर्मूला था उसके बेसिस पे हमने एक कंक्लूजन निकाला कि स्पीड ऑफ लाइट उस जो मीडियम में होगी, रीअरेंज किया हमने फॉर्मूले को, तो हमें ये कंक्लूजन मिला है कि स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम की वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दैट मीन्स कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का जिसका सबसे कम होगा उसमें इस लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट किया कि तीनों मीडियम में सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वाटर का, दैट इज 1.33। तो दैट मीन्स वाटर में सबसे ज़्यादा लाइट फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी। I hope these 2 questions they are clear to you. Now in the next upcoming video I will explain you about lenses and lens formula. That's it for today. Thank you and have a nice day.